सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है। और एमएमआरडी में हम लोग सेफ्टी और स्पीड का भी हम लोग एम्फसिस हम लोग बहुत देते हैं, महत्व उसको देते हैं। तो उसके हिसाब से जो अभी इंटरेक्शन हो रहा है नेशनल लेवल का और जो एग्जीबिशन इधर चल रहा है, इसका बहुत इससे नए नए आइडियाज़ आ जाएंगे और नया नया प्रोजेक्ट्स, स्पेशली आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स का भी डिस्कशन होगा, लाइक ट्रांसफार्मर लिंक को मैंने बताया। और इसी हॉल के बगल में अपना मेट्रो प्रोजेक्ट एमएमआरडी का चल रहा है, जिससे हम लोग ये हॉल को हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं। सो इसके वजह से मुझे दो चीज़ें लगता है कि जो शहर को फ़ायदा होगा और इंडस्ट्री को। नंबर एक दूसरे से नया नया टेक्नोलॉजी को सीखने का एक मौका मिलता है सबको, और दूसरा इसको एप्लीकेशंस मुंबई शहर वासियों को और महाराष्ट्र के वासियों को सबको इसका फ़ायदा मिलेगा, और इसका एप्लीकेशंस और इसका फ़ायदा सब लोग उठाए, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। One of the best exhibition I have seen in my life. It is helpful for not only the Mumbaikars, but it is helpful for the whole of the countries. We have seen the new technology, new concrete methods, and which will really helpful in the development of the country. इससे कितना फायदा होगा इंडिया को? जितने भी नए टेक्नोलॉजीज है, इनके वजह से जो कंस्ट्रक्शन टाइम है, वी कैन रिड्यूस द कंस्ट्रक्शन टाइम। कंस्ट्रक्शन टाइम अगर रिड्यूस होता है तो उसका इकोनॉमी बहुत फर्क पड़ता है। सो इट इज़ रियली प्रॉफिटेबल फॉर एवरीबडी। दीज आर द ऑल न्यू एंड एडवांस टेक्निक्स, एंड एवरीवन मस्ट विजिट दिस वर्ल्ड ऑफ कॉन्क्रीट। Thank you. Thank you very much. The organizing team who has arranged this World of Concrete, and we are seeing number of stalls which are related to concrete directly or indirectly. These are all the latest technologies which are displayed with all the latest material. As a part of Brihan Mumbai Municipal Corporation, we can use this material and this technology in our projects to have the sustainability, durability and long lasting. As we all know that Brihan Mumbai Municipal Corporation, we are designing structures for 100 years. So for these 100 years we can certainly use these technologies and this material, and we will definitely take away many things from this concrete show. Thank you. वर्ल्ड ऑफ कंक्रीट एग्जीबिशन ये मेरे ख्याल से अंडर दिस ब्रांड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम हो रहा है, और आफ्टर कोविड ये इतना बड़ा फंक्शन यहाँ ऑर्गेनाइज किया है वर्ल्ड ऑफ कंक्रीट वालों ने। आई कॉन्ग्रेचुलेट देम, एंड द कंटेंट ऑफ दिस फंक्शन is very good, because we have got manufacturers, we have got technology providers, we have got material people. Like I visited one stall at Apple Chemie, they are doing wonderful products here. So also the seminar and the contents, यहाँ पर जो सेमिनार ऑर्गेनाइज किए हुए deliberations है, they are really good, and I am very happy that we are having such a widespread available for the technocrats, because I am past president, national president of Indian Concrete Institute, and for the construction industry to have such a big platform made available is a good thing, and this will help a lot for all the construction and infrastructure industry. Yeah, it's a very nice thing you asked me. See, what's new? Because see, every time you need new, and you need something which will solve your challenges. Today the biggest challenge is to do complicated construction works like metro underground हो रहा है मुंबई में, लोगों को पता ही नहीं, but there are so much of length of metro tunnel is done. So also now from Bandra, see this is Bandra to Warsaw sea link is coming, another sea link is coming. So can you look at center, please? Yeah, so all these new constructions which are going on will need new technologies. See, when you think something different, a new phenomena comes into existence, a new project comes up. But for giving a new dimension to this project, you need new type of technology, new type of material, and new type of manpower. And this is happening today in India. We have wonderful technologies from all over the world. We have wonderful materials, sustainable and durable materials, and not only that, we have got skilled manpower and the young manpower.
And this is something new which is happening today in India, and it will give huge boost to the infrastructure and construction industry as a whole. जो है ये हमारी 8th एडिशन में हम लोग कर रहे हैं। ये शो अभी 3 साल के बाद हो रहा है, बिकॉज 19 में हमने किया था, 2019 में। और ये वर्ल्ड ऑफ कंक्रीट शो है, ये यूएस का और वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंक्रीट शो है जो लास वेगस में होता है। वो हम यहाँ पे लाए हुए हैं और 150 से ज़्यादा एग्जिबिटर्स आए हुए हैं, अलग अलग 7 से 8 देशों से एग्जिबिटर्स आए हुए हैं, और सारी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, कंक्रीट से रिलेटेड जो सारी टेक्नोलॉजीज़ है, प्रोडक्ट्स है, इनोवेशंस है, सारे यहाँ पे डिस्प्ले में हैं। ये 3 दिन का एग्जीबिशन हो रहा है और यहाँ पे एग्जीबिशन में हम लोग 7 से 8 हज़ार ट्रेड विजिटर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो इंजीनियर्स होंगे, जो आर्किटेक्ट्स होंगे, जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड डेवलपर्स होंगे, वो सारे ये शो में आने वाले हैं। बहुत सारे कॉन्फ्रेंस सेशंस रखे हुए हैं, टेक्निकल सेमिनार्स रखे हुए हैं, वी हैव अ इनोवेशन जोन, वी हैव अ स्टार्टअप पवेलियन। सो बहुत कुछ हो रहा है ये शो फ्लोर पे, जो तीन दिन में यहाँ पे पूरा इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनके लिए है। सो प्लीज़ जो भी है ये शो में आके देखिए, सारी नई इनोवेशंस आपको देखने मिलेंगी। और 3 दिन चल रहा है ये बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर गोरेगांव में, मुंबई में। जो नई मशीनरीज है उससे इंडिया को कितना फ़ायदा होगा कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र? डेफिनेटली होगा, बिकॉज आज कंस्ट्रक्शन का जो पेस है, वो पेस बढ़ने के लिए जो नई मशीनरी, नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, जो प्रोडक्ट्स का जो कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए जो टेक्नोलॉजीज आई हुई है, सो वो सारी टेक्नोलॉजीज आपको यहाँ पे देखने मिल रही है। प्लस अभी ये सेक्टर जो है वो एक तरह से कार्बन एमिटिंग सेक्टर कहा जाता है। 6 to 8% जो कार्बन एमिशन हो रहा है वर्ल्ड में, वो बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है। सो ये अभी ये सेक्टर उसमें बहुत ज़्यादा काम कर रहा है डीकार्बनाइजेशन के बारे में, जहाँ पे भी ग्रीन कॉन्क्रीट करके नया प्रोडक्ट उभर के आया हुआ है। वैसे अलग अलग जो टेक्निक्स यूज़ करें, जैसे कार्बन डीकार्बनाइजेशन हो जाए, जिससे पोल्यूशन कम हो जाए, वो सारी यहाँ पे टेक्निक्स आपको देखनी मिलेंगी। सो ये एक डिफरेंट लेवल का टेक्नोलॉजिकल शो है। How much country are involved in this? About 8 countries. 8 countries. So we have Germany, we have France, we have Italy, we have Japan, we have US. So similarly 8 countries are here. सर, अगर आपने कहा कि इतनी सारी कंट्री है, तो इसका जो इफेक्ट है कैसा इंडिया में पड़ेगा? बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होंगे। ये टेक्नोलॉजी जो है वहाँ पे बन के आई हुई है, वो यहाँ पे आज डिस्प्ले पे आ रही है। और टेक्नोलॉजी से क्या होगा, आपके पहले स्पीड ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, जो आपके जो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, जो इसको 5 साल लग रहे हैं, वो शायद 3 साल में कंप्लीट हो जाए, उसका कॉस्ट कम हो जाए, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाए। सो मैन पावर जो लगता है वो कम हो जाए, बिकॉज ऑटोमेशन आ जाएगा। तो उस हिसाब से व्हाट विल सी, जो प्रोजेक्ट जो डिलीवर हो रहे हैं इंडिया में, वो एट अ लेसर कॉस्ट एंड मच मोर क्वालिटेटिव प्रोजेक्ट्स आपको देखने मिलेंगे आगे जाके, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। और गवर्नमेंट का जो विजन है, जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट नियरली $1.4 ट्रिलियन। सो नियरली 1/3 ऑफ दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें ये टेक्नोलॉजी का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये शो इसीलिए हम लोग लेके आए, जैसे नई टेक्नोलॉजी डिस्प्ले पे हो, जो इंडिया में इम्प्लीमेंट हो जाए। थैंक यू। जो नई टेक्नोलॉजीज़ हमारे इवेंट पे आती हैं, वो इंडियन जो प्लेयर्स हैं उनके लिए एक इंस्पिरेशन हो जाती है। और हम लोग जैसे हमारे जो इंडिया का इंटेलेक्चुअल स्किल्स, सबको मालूम है कि इंजीनियरिंग स्किल्स कितनी एडवांस्ड हैं, सो हम लोग उसको बेहतर बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, उसको अपने देश के हिसाब से, क्योंकि हमारी जो यहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन है उसके हिसाब से हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और कोई भी एग्जीबिशन करते हैं तो आप उसके अंदर देखिए कि जो स्टेक होल्डर्स आते हैं अलग अलग कंट्री से, या अलग अलग ज्योग्राफीज ऑफ विद इन इंडिया जो स्टेक होल्डर्स आते हैं, सो सब अपना एक नया एलिमेंट, एक नई सोच, एक नया प्रोडक्ट, नई एप्लीकेशन लेके आते हैं और उसको शोकेस करते हैं। और बेसिकली सबके लिए एक लर्निंग होता है। तो आपको एग्जीबिशन और कॉन्फ्रेंस उस तरह से रखना होता है कि देयर इज़ सम मीट फॉर एवरीवन, देयर इज़ सम टेक अवे फॉर एवरीवन। और यही हमारा ये हमारी सोच रही है, यही हमारा ये जो 8वां कंक्रीट का शो आज आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ कंक्रीट के नाम से, और यही ये चीज़ शो कर रहा है। और चूँकि अभी 2-3 साल के बाद हो रहा है फिजिकल इवेंट, लास्ट हमारा 2019 में हुआ था, 2021 सबको मालूम है कि कोविड के कारण कुछ नहीं हो पाया। सो लेकिन अगले साल जब आप 23 में देखेंगे, हमने डेट्स ऑलरेडी अनाउंस कर दी हैं। तो दिस शोज़ आर कमिटमेंट टू द सेक्टर, एंड आप लोगों की, सबकी इंडस्ट्री की सपोर्ट के साथ मैं एक चीज़ एश्योर कर सकता हूँ आपको कि अगला इवेंट जो रहेगा वो कहीं इससे ज़्यादा बड़ा, कहीं इससे
ज़्यादा रिच रहेगा इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, क्योंकि बहुत टारगेट है हमारा कि नई कंट्रीज़ को हम लोग एक कंट्री पेविलियंस के रूप में लेके आएँ। आज जो हमारी कंपनी यहाँ पे आई हैं, चाहे वो जर्मनी से हैं, जापान से हैं, वो इंडिविजुअल कंपनीज़ हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगर कंट्री पेविलियंस बने तो उन कंट्री पेविलियंस के अंदर फिर आप इमेजिन कर सकते हैं कि ज़्यादा नंबर ऑफ़ कंपनीज आएंगी हर पेविलियन के अंदर, चाहे वो कनाडा है, जर्मनी है, जापान है, क्योंकि जिनका फोकस है इंडियन कंस्ट्रक्शन मार्केट के अंदर। और जब ज़्यादा नंबर ऑफ़ कंपनीज आएंगी तो नई और टेक्नोलॉजीज आएंगी, क्योंकि अगर आप यूरोप को ध्यान से एग्जाम्पल देखें, यूरोप के पास टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा है, लेकिन उनके पास मार्केट नहीं है। स्मॉल कंट्रीज, बिग टेक्नोलॉजीज, सो दे नीड अ बिग मार्केट। और मेरे ख्याल से आज की तारीख में इंडिया से बेहतर बड़ी मार्केट कोई उनको मिल नहीं सकती। सो हमारे लिए एक बहुत अच्छा, हम लोग एक बहुत अच्छे स्टेज पे हैं कि अगर हमने अब अपनी पॉलिसीज़ और अपने जो हमारे रेगुलेटरी मेजर्स हैं, अगर उसको इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाया, तो आई थिंक भारत किसी से पीछे नहीं है।